nationalism among Indians. In the form of question, you can write like this: how First World War created the feelings of nationalism among Indians, and the first topic of the chapter. As I've told you while telling the story of this chapter, that First World War, now you can write like this: First World War started in 1914 and ended in 1918. एक बात और याद रखना, always try to write in points. पॉइंट्स में लिखा हुआ एक तो इजीली लर्न होता है एंड प्रेफर किया जाता है, जो चेकर होते हैं ना बोर्ड में, उनको भी इजी लगता है टू चेक, चेकिंग भी इजी होती है चेकर की, तो इस वे से बोर्ड में वैसे भी सीबीएसई में प्रेफर किया जाता है कि बच्चा पॉइंट्स में लिखे, ठीक है। तो राइट 10 पॉइंट्स, so you can write like this now: First World War started in 1914 and ended in 1918. अब ये इसमें नहीं बताने की जरूरत अलाइड एंड एक्सेस पावर्स, वो मैंने वैसे ही आपको बताया हुआ है एंड वी विल डू ओरली लेटर, ठीक है। तो इसमें आप अब इतना बताओगे: इंडिया हैड नो एनमिटी विद एनी कंट्री बट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस वार ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश ना, तो इसलिए इंडिया हैड नो एनमिटी विद एनी कंट्री बट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस वार एज इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हो: ब्रिटिश फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट, एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट। ये 1 मार्क में कितनी बार पेपर में आ चुका है, व्हाट डू मीन बाय फोर्स रिक्रूटमेंट? ब्रिटिश फॉलोड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, दे फोर्स्ड इंडियन पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू ज्वाइन द आर्मी। Many Indians lost their lives in this war. Next आप बता सकते हो: in this war British suffered heavy losses and they decided to do their economic recovery from India. In this war British suffered heavy losses and they decided to do their economic recovery from India. इंडिया से रिकवरी की थी और इंडिया उनकी कॉलोनी थी ना, इसलिए। Before war, British promised that they would introduce some reforms in Indian administration, but after war, they turned more harsh towards Indians. वार से पहले लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाया ना कि हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स लाएंगे। Before First World War, British promised that they would introduce some reforms in Indian administration, but after war, they turned more harsh towards Indians. They imposed various taxes on Indian people. They introduced new tax, income tax. न्यू टैक्स इनकम टैक्स भी उन्होंने स्टार्ट किया। 2 famines also occurred in India in those days. अब देखो बदकिस्मती इंडियंस की, 2 famines also occurred in India in those days. In 1918, 1919 years पूछते होते हैं पेपर में। 2 famines also occurred in India in those days. In 1918, 1919 and 1920, 21. $13 million people lost their lives. Due to this 13 million people lost their lives. 13 million people lost their lives. Peasants were not in condition to pay revenue. क्योंकि famines आए थे, how could they pay revenue? Peasants were not in condition to pay revenue. But British never remitted revenue and forced them to pay. कभी भी ब्रिटिश रेवेन्यू, आप आगे जाके भी पढ़ोगे, ब्रिटिश कभी भी रेवेन्यू रिमिट नहीं करते थे एंड फोर्स देम टू पे। ब्रिटिश
exploited India economically, socially, politically. So due to this, feelings of nationalism came among Indians. British exploited India totally, politically, economically, socially, हर तरह से उन्होंने Indians को exploit किया. And all this created the feelings of nationalism among Indians. अपने आप सोचो अगर अपनी गवर्नमेंट होती तो क्या इतना टॉर्चर करती? No. क्योंकि ब्रिटिश थे, आउटसाइडर्स थे, हैड नो सोशल कॉन्टैक्ट विद इंडियंस, तो इसीलिए उन्होंने उनको हर तरह से टॉर्चर किया. सो ऑल दिस क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ नेशनल. लोग तभी चाहते थे ना कि अपनी गवर्नमेंट हो, अपनी होती तो इतना टॉर्चर तो ना करती, लोगों को हेल्प करती. So British, all this created the feelings of nationalism among Indians. So this is about the first topic. How First World War created feelings of nationalism among Indians. You can write according to your choice, according to your own way. आप इसको अपने आप कट शॉर्ट करके जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट राइट इन पॉइंट्स. अब आप बता सकते हो, नो नीड टू राइट हियर एनी क्वेश्चन. एक पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे ही लिख लो. सो मेनी 1 मार्क क्वेश्चंस कैन बी कम फ्रॉम दिस टॉपिक. गांधी जी केम, नो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, ऐसे ही पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915. Before coming to India, he was in South Africa, and there he launched सत्याग्रह मूवमेंट. गांधी जी 1915 में आए इंडिया, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी. गांधी जी केम टू इंडिया. 1 मार्क क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इन विच ईयर गांधी जी केम टू इंडिया. देन ही वाज 42 इयर्स ओल्ड. आपको पता है 42 इयर्स के थे गांधी जी जब इंडिया में आए. गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915, and before coming to India, he was in South Africa. There he launched Satyagraha movement. Because in South Africa, पूछा जाता है why गांधी जी launched 1 mark में कि why गांधी जी launched Satyagraha movement in South Africa. Because in South Africa there was racial discrimination. In 9th class we have read about apartheid. वही बात मैं कर रही हूँ. गांधी जी came to India in 1915. Before coming to India, he was in South Africa. He launched Satyagraha movement in South Africa because in South Africa there was racial discrimination. Indians and blacks, Negroes जो होते थे, Indians and blacks were treated badly by whites. Indians and blacks were treated badly by whites. So that's why Gandhiji launched Satyagraha movement in the favor of Indians in South Africa. इसमें से 1 mark की क्वेश्चन बनने हैं. In which year Gandhiji came to India? Where was Gandhiji before coming to India? Why he launched Satyagraha movement in, which movement was launched by Mahatma Gandhi in South Africa? Why he launched Satyagraha movement in South Africa? So many questions can be asked. 1 mark question can be asked from this topic. Okay, तो इस वे से इसको आपने कर लेना है, ठीक है. तो अब आप बताओगे, इसी में बताओ, when Gandhiji came to India, when Gandhiji came to India on the advice of his political guru Gopal Krishan Gokhale. You have to learn this name. On the advice of his political guru Gopal Krishan Gokhale. It's not given in the book. बोर्ड में नहीं पूछते, बस वैसे आपको बताना चाहिए. On the advice of his political guru Gopal Krishan Gokhale, he took the round of whole of India. अब पूरे इंडिया का राउंड किया अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे. And he was shocked to see the poor condition of Indians under British. हम अभी करके हटे हैं, इंडिया was politically, economically, socially exploited. So Gandhiji was shocked to see the poor condition of Indians under British. He was also shocked when he saw the poor condition of untouchables in India.
अनटचेबल्स को देख के भी उन्हें बहुत, अनटचेबल्स की कंडीशन को देख के भी उन्हें बहुत दुख हुआ था कि how they were exploited by high caste Hindus. He was also shocked to see the poor condition of untouchables in India. He decided to launch सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया. तो इसीलिए उन्होंने इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया था. He decided to launch सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया. अब आपका हेडिंग बनेगा सत्याग्रह मूवमेंट. सत्याग्रह मूवमेंट. सत्याग्रह. पेपर में क्वेश्चन आता होता है, राइट नोट ऑन सत्याग्रह. सत्याग्रह मूवमेंट. सत्याग्रह मीन्स टू फाइट फॉर ट्रुथ. सत्य पता है ना, हिंदी का वर्ड है सच. सत्य, अग्रह, लड़ाई, फाइट. सत्याग्रह मीन्स टू फाइट फॉर ट्रुथ, सच के लिए लड़ना. सबको पता है गांधी जी हमेशा ट्रुथ और नॉन वायलेंस में ही बिलीव करते थे. सत्याग्रह मीन्स टू फाइट फॉर ट्रुथ. इन दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड सत्याग्रहीज. सत्याग्रहीज मीन्स उनके जो फॉलोअर्स बने थे इस मूवमेंट में. इन दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड सत्याग्रहीज that if their fight is against injustice, in this movement Gandhi ji asked satyagrahis to raise their voice against injustice and use, जो भी आपने लिखा है मुझे नहीं ध्यान. In this movement Gandhi ji asked satyagrahis, if your fight is against injustice, then use moral force to fight the war, not physical force. यूज मोरल फोर्स. मोरल फोर्स पे स्ट्रेस दिया गांधी जी ने, फिजिकल फोर्स पे नहीं. लड़ने में विश्वास नहीं करते थे वो. आपके सामने एग्जांपल्स हैं, मूवीज हैं, लगे रहो, मुन्ना भाई, संजय दत्त, कैसे वो मोरल फोर्स से चेंज करता है लोगों को. इन दिस मोमेंट गांधी जी आज सत्याग्रही टू, इफ योर फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपकी लड़ाई इनजस्टिस के अगेंस्ट है, यूज मोरल फोर्स टू विन द वार, नॉट फिजिकल फोर्स. In this movement, Gandhiji took 3 सत्याग्रह राउंड्स. अब आप वो राउंड्स बताओगे गांधी जी के, महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह राउंड्स. फर्स्ट, आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट राउंड. ऐसे ना आंसर पॉइंट्स में भी हो जाता है और इजी भी लर्न करना रहता है. फर्स्ट राउंड. इन दिस मोमेंट ही टुक 3 सत्याग्रह राउंड्स. अब आप लिखोगे फर्स्ट राउंड. अब आपको याद है 1915 ही केम टू इंडिया. अब 1916 की टर्न आ रही है. इन 1916 गांधी जी वेंट चंपारण, CHAMPARAN, चंपारण, CHAMPARAN. You can see spelling from the book. Later on, you can see spelling from the book. Okay. In 1916, Gandhi ji went Champaran, village in Bihar, to help the peasants, as here they didn't want to grow indigo. To help the peasants as they didn't want to grow indigo. इंडिगो मैं बता चुकी हूँ आपको क्या आता है, डाई की तरह है ना. ब्रिटेन लेके जाते थे डाई इंडिया से अपनी इंडस्ट्रीज में, क्लोथ्स के लिए. Here peasants didn't want to grow indigo as they were forced by indigo planters. Indigo planters जो होते थे ना, उन्हें फोर्स करते थे कि इंडिगो ग्रो करो. Peasants didn't want to grow indigo. This movement was also known as Indigo Planters Movement. ब्रैकेट में लिख लो ताकि मैप का क्वेश्चन इजी लगेगा. ये मैं हमेशा लिखवा देती हूँ, मैप की लाइन एक साथ में आ जाती है. दिस मूवमेंट आल्सो नोन एज इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट. इसको इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट कहते हैं. पेपर में मैप में ऐसे ही पूछना है, लोकेट द प्लेस वेयर इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट वाज हेल्ड, सो यू हैव टू लोकेट चंपारण.
This movement was also known as Indigo Planters Movement. Next, heading now second round. In 1917, Gandhiji went Kheda district in Gujarat. Kheda, 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 Kheda district in Gujarat to help the peasants as they were not in the condition to pay revenue to British government. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, पैमाइन्स आए थे, तो पीजेंट्स इतना ज्यादा, अभी पैमाइन्स तो चलो नहीं भी आए, बट पीजेंट्स पैमाइन्स बाद में आया, 1918 1919 में आया, तो ये 1917 का राउंड है ना। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पीजेंट वेंट टू फाइट वार, तो इसलिए दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। आप लिखोगे नहीं, आप ऐसे ही बताओगे, हियर पीजेंट्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गांधी जी वेंट टू रिमिट देयर रेवेन्यू, ब्रिटिश नेवर रिमिटेड रेवेन्यू एंड दे पोस्टपोन इट टू नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा नहीं देना ना, कोई बात नहीं, मत दो, नेक्स्ट ईयर डबल देना, बात तो वही आ गई। इन दिस मूवमेंट गांधी जी वेंट टू help the peasants as they were not in condition to pay revenue. British never remitted revenue and postponed it to next year. उन्होंने कहा नहीं देना ना इस साल, मत दो, नेक्स्ट ईयर डबल देना। ये आपने नहीं लिखना, वैसे बता दो, never remitted revenue and postpone it to next year. इसको भी लिख लो, दिस मूवमेंट वाज नोन एज पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट। मैं आपकी साथ साथ लाइन लिख लो, दिस मूवमेंट इज नोन एज पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट। जैसे उधर आपने लिखा इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, ये है पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या कहा गया? पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट आप लिखोगे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड 1915 Gandhiji came to India, 16 Champaran, 17 Kheda, 18. In 1918, Gandhiji went Ahmedabad in Gujarat. Means उनके 2 rounds गुजरात के थे। In 1918, Gandhiji went Ahmedabad in Gujarat to help the cotton mill workers. Cotton mill workers की help करने गए थे यहाँ पे। Here workers demanded that their wages should be increased and working hours should be reduced. Workers की डिमांड क्या थी? Wages should be increased, working hours should be reduced. तो गांधी जी वर्कर्स की हेल्प करने गए थे। So these are the 3 rounds of Mahatma Gandhi, 3 सत्याग्रह rounds of Mahatma Gandhi. नेक्स्ट आपका ईयर आ रहा है 1919। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे रॉलेट एक्ट, ROWLALATT, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रैकेट में साथ में लिख दो ब्लैक बिल्स, ब्लैक बिल्स। रॉलेट एक्ट, ब्लैक बिल्स। पेपर में ब्लैक बिल्स भी पूछ लेते हैं, रॉलेट एक्ट भी पूछ लेते हैं, डिपेंड अपॉन देयर चॉइस। तो आपको ब्लैक बिल्स आए तो वहां पे ये नहीं सोचना हमने नहीं किया, हमें तो रॉलेट एक्ट किया, एक ही बात है। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919 अंडर जस्टिस रॉलेट, अंडर जस्टिस रॉलेट। पॉइंट्स में जितना हो सके पॉइंट्स में करो, आपके लिए भी इजी लर्न करना। दिस एक्ट गेव वास्ट पावर्स टू पुलिस। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। दिस एक्ट गेव वास्ट पावर्स टू पुलिस। पुलिस को पावर्स मिल गई थी। पुलिस कुड अरेस्ट, बाय दिस पुलिस कुड अरेस्ट, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग बाय दिस पुलिस कुड अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years।
किसी भी इंडियन को उठाओ 2 साल के लिए, जिसपे शक है उसे उठाओ 2 साल के लिए जेल में डाल दो. By this act, police could arrest any Indian without trial for 2 years. Indians had no right to appeal, दलील and वकील. इंडियंस ना तो अपील कर सकते थे, ना ही दलील दे सकते थे, और एंड वकील भी नहीं कर सकते थे. ऐसे लिखना वकील, VAKIL, वकील. इंडियंस हैड नो राइट टू अपील, दलील, और टू हायर वकील, और ऐसे लिख दो नो राइट टू अपील, दलील एंड वकील. दलील भी नहीं दे सकते थे, अपील भी नहीं कर सकते थे. देखो जेल में डाला तो बैठे रहो 2 साल. होल इंडिया वाज अगेंस्ट दिस एक्ट एंड इट वाज नोन एज ब्लैक बिल्स. तो इंडियंस तो अगेंस्ट ही होंगे ना, जिसको उठाओ जेल में डाल दो, जिसपे शक है जेल में डाल दो, और उन्हें राइट भी ना दो कि वो अपील कर सके, दलील दे सके, या वो वकील हायर कर सके. वो राइट ही नहीं थे इंडियंस के पास. होल इंडिया वाज अगेंस्ट दिस एक्ट. गांधी जी वाज आल्सो अगेंस्ट दिस एक्ट एंड दैट्स व्हाई ही डिक्लेयर्ड हड़ताल. हड़ताल वर्ड ही लिखना है, स्ट्राइक नहीं लिखना. गांधी जी वाज अगेंस्ट दिस एक्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थे. दैट्स व्हाई डिक्लेयर्ड हड़ताल इन होल ऑफ इंडिया on 6 अप्रैल 1919. 6 अप्रैल को उन्होंने कहा पूरे इंडिया में हड़ताल होगी. He declared हड़ताल इन होल ऑफ इंडिया on 6 अप्रैल 1919. अब ये डेट्स ईयर्स नहीं भूलने, ठीक है. अब आप हेडिंग बनाओगे हड़ताल, ब्रैकेट में लिखोगे रॉलेट सत्याग्रह. पेपर में रॉलेट एक्ट 5 नंबर का आ जाए तो रॉलेट सत्याग्रह लिख के करना है. 3 नंबर का आए तो जितना भी लिखा है उतना लिखना है. आपने वहां पे देखना आपसे पूछा गया है. कई बार सीधा रॉलेट सत्याग्रह ही पूछते हैं, बाकी आपको फिर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देके सीधा रॉलेट सत्याग्रह ही लिखना है. हड़ताल, हेडिंग बनाओ हड़ताल. कई बार हड़ताल पे टॉपिक दे देते हैं. राइट नोट ऑन हड़ताल दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय महात्मा गांधी ऑन आफ्टर द रॉलेट एक्ट. आपको ऐसे भी दे देते हैं. तो आपको हड़ताल वाला टॉपिक भी आपको कवर करना है, तो साथ में ब्रैकेट में लिखो रॉलेट सत्याग्रह. अब इसमें आप लिखोगे on 6th April, as there was हड़ताल in whole of India, shops were closed. अब आप जो जो हड़ताल में देखते हो ना, आपको इसको लर्न नहीं करना, अपने आप लिख दो. shops were closed. अभी भी क्या होता है, हड़ताल होती है तो क्या क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस were also closed. shops were closed. School colleges were also closed. क्योंकि इंडिया कॉलोनी थी तो इंडियंस तो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे ना, तो इसमें ये भी आप बता सकते हो इंडियंस बर्न्ट ब्रिटिश गुड्स इन हीप. ढेरों के ढेर इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स को जलाया. इंडियंस बर्न्ट द ब्रिटिश गुड्स इन हीप. इन देयर वाज हड़ताल इन अमृतसर आल्सो. देयर वाज हड़ताल इन अमृतसर आल्सो, क्योंकि होल इंडिया में थी तो अमृतसर में भी थी. टू पॉलिटिकल लीडर्स, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू, KITCHLEW, डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर किचलू, KITCHLEW. लुधियाना में इनके नाम के डॉक्टर किचलू के नाम का एक नगर है जहाँ पे DMC हॉस्पिटल है. Two political leaders, Dr. Satyapal and Dr. Kichlu, were arrested by the British. Indians demanded to release these political prisoners. इंडियंस ने क्या बोला, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो. ब्रिटिश रिफ्यूज्ड. पीपल टर्न्ड वायलेंट and British had to call General Dyer, and British had to call General Dyer. He reached Amritsar
उनको जनरल डायर को इंग्लैंड से बुलाना पड़ा। ही रीच्ड अमृतसर ऑन 10th अप्रैल। 6 अप्रैल को हड़ताल थी, वायलेंस हो रही थी हर जगह, तो ब्रिटिश हैड टू कॉल जनरल डायर। ही रीच्ड अमृतसर ऑन 10th अप्रैल एंड पास्ड मार्शल लॉ। मार्शल लॉ पास कर दिया आते ही। ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू दिस पीपल वर नॉट अलाउड टू असेंबल। पूछते होते व्हाट डू यू मीन बाय मार्शल लॉ? It was passed by General Dyer. According to this, Indians were not allowed to assemble. Assemble नहीं हो सकते थे Indians. So British had to call General Dyer. He reached Amritsar on 10th April and he passed martial law. According to this, Indians were not allowed to assemble. अब आ जाना है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसको करके ना, अब तो छोटा सा टॉपिक है, डू इट, बाकी हम बाद में करेंगे आफ्टर वेकेशन। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। On 13 April 1919, Congress called a peaceful meeting at Jallianwala Bagh. कांग्रेस ने एक पीसफुल मीटिंग बुलाई थी जलियांवाला बाग में। कांग्रेस कॉल्ड अ पीसफुल मीटिंग एट जलियांवाला बाग। Many people came to अमृतसर ड्यू टू बैसाखी फेयर। अब आपको पता है बैसाखी का मेला, बैसाखी होती है तो लोग गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर आते हैं। मैनी पीपल केम टू अमृतसर ड्यू टू बैसाखी फेयर। एज दे वर आउटसाइडर्स, क्योंकि वो दूसरी स्टेट से आए थे, एंड दे डिडंट नो अबाउट द मार्शल लॉ। उन्हें मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। दे वेंट जलियांवाला बाग विद देयर किड्स। अगर उन्हें पता होता तो क्या वो खुद जाते या अपने बच्चों को लेके जाते, उन्हें नहीं पता था। दे वेंट जलियांवाला बाग विद देयर किड्स। अभी भी आप गोल्डन टेम्पल जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जलियांवाला बाग कई बार चले जाते हो। ऐसे ही वो लोग भी अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग चले गए। दे वेंट जलियांवाला बाग विद देयर किड्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब जनरल डायर को लगा कि उसके ऑर्डर को लोगों ने फॉलो ही नहीं किया, उसको ऐसे लगा। जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग विद हिज ट्रूप्स। अपनी आर्मी लेके वो जलियांवाला बाग आ गया, क्योंकि उसको लगा कि उसका ऑर्डर डिसओबे किया लोगों ने। जनरल डायर entered the Jallianwala Bagh with his troops and blocked the narrow gate. अभी भी आप जाओ वहां पे एक ही गेट है, नैरो गेट है, देखना। and blocked the narrow gate, उसी को ब्लॉक कर दिया। अब लोग कहाँ जाते? He ordered his troops to fire on unarmed Indians. अब वो बेचारे तो अनआर्म्ड थे, उनके पास कौन सा वेपन थे? वो तो जलियांवाला बाग घूमने के लिए गए थे, कुछ मीटिंग अटेंड करने आए थे, जो कि कांग्रेस ने पीसफुल मीटिंग बुलाई थी। वो भी वेपन्स नहीं लेके आए थे। ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू फायर ऑन टू अनआर्म्ड इंडियंस। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड। ऐसे हुआ था, अगर बच्चे थे ना तो पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स थे तो बच्चे नहीं थे, ऐसे हुआ था इस इंसिडेंट के बाद। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी गॉट इंजर्ड। होल इंडिया वाज शॉक्ड ड्यू टू दिस इंसिडेंट। अब पूरे इंडिया में शॉक की लहर दौड़ गई, दुख। होल इंडिया वाज शॉक्ड ड्यू टू दिस इंसिडेंट। गांधी जी आल्सो फेल्ट सैड। गांधी जी को बहुत दुख हुआ। एंड ही डिसाइडेड टू कॉल बैक हिज सत्याग्रह मूवमेंट। जब वायलेंस होती थी ना तो गांधी जी अपनी मूवमेंट वापस लेते थे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड he decided to call back his
सत्याग्रह मूवमेंट एंड डिसाइडेड, बस यहाँ पे खत्म करती हूँ, एंड डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट and decided to launch non-cooperation movement. नॉन कॉपरेशन का मीनिंग तो बताइए ना, नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश। अब ये हम नॉन कॉपरेशन आज नहीं करते, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का उन्होंने डिसीजन लिया था यहाँ पे। तो अभी आप इसको नहीं लिखोगे, मैं वैसे बता देती हूँ, गांधी जी ने मुस्लिम्स के साथ हैंड ज्वाइन की है इस मूवमेंट में। अगर तो नॉन कॉपरेशन अकेला है तो 1920, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है तो जनवरी 1921। ये बातें याद रखनी है। नॉन कॉपरेशन अकेला है तो 1920 में लॉन्च हो गई, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है तो वो है जनवरी 1921। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वहां पे देखना है खिलाफत लिखा है साथ में। चलो इसको बाद में करते हैं। हॉलीडेज होमवर्क आपको दिया गया, भेजा गया आपको ग्रुप्स में क्लास के। आपको क्या करना है, 2 सेपरेट, आपको एक ज्योग्राफी की असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट एंड मैप्स है बच्चे, आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज है, पार्ट ऑफ द पेपर है, असेसमेंट है, इसके मार्क्स लगने हैं। इसको लाइटली मत लेना। डू योर हॉलीडेज होमवर्क वेरी नीटली। आपने जो ज्योग्राफी का करना है कंप्लीट इट एंड देन सेंड इट टू सुरेंद्र सर फॉर चेकिंग। जितना बहुत लिमिटेड सा होमवर्क दिया आपको, ज्यादा दिया भी नहीं है। और हमारी असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स मींस आपने एक लूज शीट्स लेनी है, उस पे वो जो भी टॉपिक है उनको लिखना है। कोई आपको फालतू का कोई काम नहीं दिया, उन टॉपिक्स को लिखना है और उनको एक फाइल में लगा के तो वो पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है, ठीक है। हिस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा कितना काम है, 3 पेजेस होंगे बस, 3 असाइनमेंट्स नहीं है, बस छोटे छोटे से टॉपिक है, आपने उनको करना है और वो उसकी पीडीएफ बना के मुझे भेजनी है। एंड ज्योग्राफी का जो आपका टॉपिक है, जो भी आपको प्रोजेक्ट और मैप वर्क है, वो आप सुरेंद्र सर को भेजोगे तो ये हम अपने आप मार्क्स आपके कंपाइल कर लेंगे। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के मार्क्स कंपाइल हो जाएंगे और वो आपकी सब्जेक्ट, और ये आपके एंड तक ये मार्क्स सीबीएसई को भी जाते हैं, यू नो इट वेरी वेल ना। ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट का पार्ट है, एक अभी मिला आपको, एक और आपको शायद अक्टूबर मंथ में एक और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी मिलेगी। बस 2 ही करनी होती हैं। एक आप अभी कर रहे हो, कितना अच्छा किया स्कूल वालों ने कि आपको कोई हॉलीडेज होमवर्क का बर्डन नहीं डाला। उन्होंने सिर्फ असेसमेंट एक्टिविटीज ही आपको दे दी हैं कि बच्चों को ना तो बर्डन रहे। वही काम जो आपको बाद में करना था, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लिए बाद में करना था, वो ही उन्होंने हॉलीडेज होमवर्क में मैम ने बोला कि वही दे दो बच्चों, ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन भी ना आए। तो आपने इस काम को बहुत अच्छे सिंसियरली करना है और बहुत नीटली करना है, ताकि टीचर अपने आप फोर्स हो जाए कि बच्चे को 5 मार्क्स तो मैंने देने ही है। अगर मैंने देने हैं तो मैं कहूँ मैंने तो 5 देने हैं, सुरेंद्र सर कहे मैं तो खुद 5 दूंगा। तो अगर 5 मार्क्स मिल गए तो मीन्स आपके असेसमेंट के पूरे नंबर हो गए। यस बिसम, व्हाट्स द प्रॉब्लम बच्चे? बिसम, आई हैव वन। Ma'am, can I use the typing thing for the holiday homework instead of